So good morning all of you. Good morning, sir. How are you people? All good? So let's talk something which is very divine also and very important also. We will touch upon a very powerful topic, and the topic is life management through Gita. Gita has been said to be one of the best book and most translated book. In the beginning, I must tell you that it's not a religious book. It is a spiritual book, a book of life management, a book of emotional management. This book not only teaches you how to live, but it also teaches you how to die. Unfortunately, we keep such books in temples only and we don't read them. So all you people who are sitting here belong to a very powerful country called India, a country which has got a marvelous culture. But unfortunately, we don't take advantage of that culture. We all know that we have wisdom in this nation. But when question comes of all the books which are available, which contain all that wisdom, unfortunately, we don't read them. So I'm asking one question to you. I know the answers are going to be a little disappointing. And the question is, how many of you have read Bhagavad Gita? Okay. One, two, okay. So there is a good number of people sitting, but how many have read? Two only. So look at the beauty. गीता का नाम सबने सुना है, लेकिन पढ़ा कितनों ने है? दो को. अच्छा, जिन दो ने बोला कि मैंने पढ़ी है, let me correct them. Do not commit this mistake of ever saying that I have read Bhagavad Gita. It's better to say I am reading Bhagavad Gita. Why? Because every time when you read this book, you'll have a different understanding. First time when you read, you understand something. Second time when you read, you understand something. Third time when you read, you understand something. So this is a glory of Gita, that every time when you'll read it, you'll come up with a different wisdom. And let me tell you, before we start this session, you are not going to be some saint after listening to this session. It's going to tell you how to live your life. The beauty of Bhagavad Gita is, it does not teach anywhere how to fight. If you read whole Gita, you will find that Gita is telling you how to live. Gita is telling you how to manage your emotions. Gita is telling you how to manage your expectation. Gita is telling you what is dharma. Gita is telling you what is not dharma. Questions are being asked by Arjuna and the answers are being given by Krishna, but nowhere, though Gita has come in the battlefield of Mahabharata, Krishna nowhere teaching Arjuna how to fight. Arjuna already knew it well, how to fight. But the problem was, Arjuna was confused. He was doubtful whether what he is going to do is right or wrong. And in order to bring Arjuna out of the confusion, these beautiful wisdom words came out of the mouth of Lord himself. Who is that Lord? Lord Krishna. Are we meeting, guys? So we can put it in this way, in a common understanding, that the first ever motivational lecture given on this planet Earth was given by God himself, Lord Krishna, and the subject was Arjuna. And the advantage and the power of this motivational session was, Arjuna came out of depression. Not only he came out of depression, he fought this war. And not only he fought this war, he won this war. So there is a huge message and there is a huge learning for all of us. Because आप भी जब अपने जीवन को देखते हो, तो जब जब आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आपका जॉब इंटरव्यू हो सकता है, वो लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज हो सकता है, उसी समय तुमको सबसे ज़्यादा घबराहट होती है. अग्री डिसअग्री. उसी समय सबसे ज़्यादा हमको विड्रॉल सिम्टम होता है, हम उससे भागना चाहते हैं. एंड द सेम वॉज हैपनिंग विद अर्जुना. बट बाई गॉड ग्रेस वहाँ पर कौन थे? कृष्ण. How many of you believe that जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना, कामयाबी चाहिए, तो हमें कामयाबी के टूल्स जाने चाहिए? Raise your hands. All of you. I mean, those who believe कि हमको अगर कामयाब होना है, तो कामयाबी के क्या टूल्स होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए. Those who believe, they raise your hands. Okay, you don't believe? Right. So now see, life is all about two things. Life is all about two things. One is called mindset and second is called tools. बोलिए एक बार. Okay. When we see the battle of Mahabharata, one side there is a mindset, other side there are tools. Okay. The army of Krishna is basically tools, and they are with the Duryodhana. And Krishna himself is a mindset. He is with Arjuna. Who wins? So you don't require tools. The first requirement of yours is your mindset.
When you say that I want to be developed in my life, you require a mindset of development. When you want to have growth in your life, you need to have a mindset of growth. When you want to be wealthy in your life, you need to have a mindset of wealth. When you want to be successful in your life, you need to have a mindset of success. But unfortunately, we think that tools are required. Tools are secondary. Primary is mindset. So the whole battle of Mahabharata is a battle between mindset and tools. But ultimately, mindset wins and tools lose. So let me give you some interesting facts about Gita, and then we'll touch upon the important beginning of Gita, the first shloka of Gita today. So as I said, this is going to teach you life management. It is going to help you to develop your personality, and it will tell you how to carry on with your life. So there are a few interesting facts which we will talk about Bhagavad Gita, and I'm sure they'll help you out. Before this, let me clarify some doubts. There are three books which are of great importance. One is Ramayana, second is Gita, and third is Ramcharitmanas. Okay? People think that Ramcharitmanas and Ramayana are same. They are not same. Though they are about same person. Ramayana is also a story of Rama, and Ramcharitmanas is also about Rama. रामचरितमानस इज रिटन बाय तुलसीदास इन कलयुग, यानी कि आपके ही युग में इसकी रचना हुई है। और इसको किसने लिखा? और रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था कौन से युग में? त्रेता युग में, जब राम थे। तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि रामायण एक अलग पुस्तक है और रामचरितमानस एक अलग पुस्तक है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा, अवधी भाषा में लिखा है, इसमें चौपाइयां हैं। और रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, संस्कृत में लिखा, इसमें श्लोक हैं। ये डिफरेंस आपको बीइंग एन इंडियन तुमको ये मालूम होना चाहिए, जानकारी तुमको मालूम होनी चाहिए। लेट मी टेल यू अ मैटर ऑफ शेम फॉर यू, अ पीपल हु कम फ्रॉम अब्रॉड, अगर आप उनसे गीता के बारे में बात करें, वो तुमको ज्यादा बताएंगे कि गीता में क्या है। उनको तुमसे ज्यादा जानकारी है। इफ यू एवर गो टू ISKCON or if you have got to places which are related to Krishna, you will see that 60% foreigners are over there and they can give you a very good lecture on Gita. And you belong to India. And one biggest mistake which has happened in the history, we have been made to believe that Ramayana and Mahabharata are mythological books. Let's rectify it forever. Ramayana is not a mythological book. Mahabharata is not a mythological book. It's your history. It is your history, and history means you belong to this. आपके पीछे आपकी ही जनरेशंस के लोग रहे हैं जिन्होंने इस पीरियड को जिया है। महाभारत भी तुम्हारा इतिहास है और रामायण भी तुम्हारा इतिहास है। तुमको गौरव महसूस करना चाहिए, इतना खूबसूरत इतिहास है। एक वक्त रहा है जब तुम्हारे इतिहास में राम रहे, एक वक्त रहा है जब तुम्हारे इतिहास में कृष्ण रहे। तो तुम छोटे मोटे देश से बिलोंग नहीं करते हो, तुम छोटी मोटी सभ्यता से बिलोंग नहीं करते हो, तुम एक बहुत बड़ी सभ्यता का हिस्सा हो। रामायण तुम्हारा इतिहास रही है और महाभारत भी तुम्हारा इतिहास रहा है। Am I making my point clear to you people? Are we meeting yes or no? Difference clear तुमको समझ आया कि रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या, और तीसरी किताब हमारी महाभारत, ये हमारा इतिहास है, रामायण भी हमारा इतिहास है। राइट गाइस? तो आज से ये चीज मूव करो अपने माइंड से कि माइथोलॉजिकल बुक्स है। माइथोलॉजिकल बुक का मतलब होता है एक मिथ, यानी कि एक ऐसा बिलीव जिसका कोई आधार नहीं है और उसको मानते चले जा रहे हैं। हिस्ट्री वो होता है जिसके फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिसके प्रूफ अवेलेबल होते हैं, और ये अवेलेबल हैं जो ये बताते हैं कि रामायण और महाभारत हमारी हिस्ट्री है। राइट गाइस? लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा और आगे मूव करते हैं एंड वील टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट भगवत गीता। इसको मूव करें उससे पहले दो तीन बातें और हम लोग स्टडी करते हैं। ऑल ऑफ यू माइट हैव हर्ड कि बोला जाता है घर में रामायण रखनी चाहिए और महाभारत नहीं रखनी चाहिए। एनी आइडिया व्हाई डू पीपल से लाइक दिस, दैट वी शुड हैव रामायण एट होम एंड वी शुड नॉट कीप महाभारत एट होम? एनी आइडिया? तो ये बिल्कुल सही है, ये कॉमन बिलीफ है कि अगर आप घर पे रामायण रखते हो तो शांति रहेगी। जैसे नॉर्मली अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो ब्राह्मण रामायण का पाठ रखवा देते हैं, भाई भाइयों में नहीं बन रही है तो रामायण का पाठ रखवा दो। और महाभारत इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे इससे झगड़ा होता है। ये हमारे इतिहास की सबसे बड़ी भूल रही। आपको घर में रामायण भी रखनी चाहिए थी और महाभारत भी रखनी चाहिए थी और दोनों पढ़ानी चाहिए थी। यू नो व्हाई? देखिए रामायण क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। रामायण तुम्हारी एक खूबसूरत फोटोग्राफ है, और जब भी आपकी कोई फोटो अच्छी आती है तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हो?
फ्रेम करके रख लेते हो, isn't it? ये अपने ड्राइंग रूम में वॉल पे टंगाओगे और देखोगे एंड you'll feel happy that yes this is me. Okay? So रामायण एक सुंदर फोटोग्राफ है जो बताती है कि पुत्र ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, सखा ऐसा होना चाहिए और राज्य ऐसा होना चाहिए, प्रजा ऐसी होनी चाहिए। सब कुछ सुंदर है रामायण में। Yes or no? All of you sitting here want कि जो मेरा बेटा हो वो राम के जैसा हो। All of you sitting here want कि भाई हो तो भरत या लक्ष्मण जैसा हो। All of you sitting here want कि पत्नी हो तो सीता जैसी हो। तो रामायण बोलती है ऐसा होना चाहिए और महाभारत बोलती है तुम ऐसे हो। महाभारत बोलती है तुम ऐसे हो। तो तुम महाभारत को रखते नहीं हो अपने पास क्योंकि तुम्हारी असली पिक्चर दिखाती है वो। तो रामायण इज योर फोटोग्राफ एंड महाभारत इज योर सीटी स्कैन। ओके, द मोमेंट यू गो टू अ डॉक्टर यू हैव एन एलिमेंट, तो एक सीटी स्कैन किया जाता है, बताता है डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम यहां पर है। तो महाभारत तुम्हारी समस्या बता रही है लेकिन सीटी स्कैन को कोई फोटो फ्रेम करके रखता नहीं है, लेकिन रखना चाहिए क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारी ये बीमारी है। और जब महाभारत ने बताया कि तुम्हारा रोग ये है, तुम अपने भाई से भी लड़ोगे, तुम दूसरे की पत्नी के साथ गलत व्यवहार करोगे, तुम जुआ खेलकर अपना बहुत कुछ नुकसान कर सकते हो। ओके, तुम दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाओगे, तुम ईर्ष्या से ग्रसित रहोगे, तुम में हीन भावना भी होगी। ये सब जब होगा तुम्हारे साथ तो इसका हल कैसे निकाला जाए, उस हल को निकालने के लिए ही महाभारत के बीच में एक किताब का जन्म होता है जिसका नाम है गीता। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो रामायण हो गया तुम्हारा फोटोग्राफ, महाभारत हो गया तुम्हारा सीटी स्कैन, और इस सीटी स्कैन से डायग्नोज करके जो तुम्हारी बीमारी निकली उसका इलाज तुमको कौन देती है? गीता। तो भाई डायग्नोज करना भी जरूरी है और उसका ट्रीटमेंट भी जरूरी है। तो पहले तो मुझे अपने रोग का पता होना चाहिए। तो रोग कौन बता रहा है मुझे? महाभारत बता रही है कि कैसे कैसे बीमारियां आदमी को हो सकती हैं और उनका इलाज क्या होगा, ये कौन बता रही है? गीता बता रही है। आर वी मीटिंग गाइस? यस और नो? तो प्लीज अंडरस्टैंड कि महाभारत की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा महाभारत के बारे में भी स्टडी करते हैं और फिर गीता की तरफ मूव करते हैं। पूरी महाभारत जो है इसको वेद व्यास ने लिखा। किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। और वेद व्यास ने जब महाभारत को लिखा तो ये अलग अलग पर्व में लिखी गई और इसमें टोटल कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। कितने पर्व? 18। यानी कि महाभारत की 18 वॉल्यूम्स हैं और इन्हीं 18 वॉल्यूम में एक वॉल्यूम में गीता भी है। दीज आर कॉमन फैक्ट जो बीइंग एन इंडियन तुमको मालूम होने चाहिए। तो टोटल कितनी वॉल्यूम्स है महाभारत की? उनको किस नाम से जाना जाता है? पर्व के नाम से। सो 18 पर्व्स आर देयर और इन्हीं 18 पर्व के बीच में एक पर्व है विच विल टेल यू लेटर, जिसमें किसको लिखा गया है? गीता को। गीता की क्लैरिटी है, बोला किसने? श्री कृष्ण ने, राइट? और सुना किसने? कोई और भी था जिसने सुना? किसने बोला? हनुमान। ही इज राइट, उसने गलत नहीं बोला। और किसने सुना? ओके, गीता श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के लिए कही गई, लेकिन अर्जुन के अलावा इसे संजय ने सुना, हनुमान जी ने सुना और बर्बरीक ने सुना। हाँ, राजा बर्बरीक, जिसको आप अभी खाटू श्याम के नाम से भी लोग पूछते हैं। तो ये 3 लोगों ने इसको लगातार सुना है। हनुमान ने कैसे सुना? क्योंकि हनुमान जो थे वो अर्जुन के रथ पर सवार थे और वो इसी कंडीशन पे सवार हुए थे कि भैया मेरे लिए कुछ होगा वहां पे। तो कृष्ण ने बोला था तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ व्यवस्था करूंगा। तो हनुमान ने बोला कि मुझे तो एक ही चीज पसंद है और वो है भजन या कोई अच्छी बातें सुनने के लिए। तो श्री राम के साथ रहते थे हनुमान और हनुमान को अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद थी। तो कृष्ण ने ऐसा कहा जाता है कि हनुमान वहां टिके रहे, इसके लिए क्या कही? गीता कही। और इसको साथ में कौन सुन रहे हैं? अर्जुन। और संजय को दिव्य दृष्टि दी किसने? वेद व्यास ने, ताकि धृतराष्ट्र को यह पता चलता रहे कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। और साथ में इसको सुना बर्बरीक ने। बर्बरीक कौन थे? वेरी गुड, घटोत्कच के पुत्र थे, बहुत बलशाली थे। पूरे महाभारत में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई था तो वो कौन थे? राजा बर्बरीक। So the moment राजा बर्बरीक came to know कि महाभारत होने जा रही है, he also decided that I'll take part in this battle. उस समय जो ये युद्ध हुआ था इसमें ऑलमोस्ट हर राजा ने हिस्सा लिया था। कोई कौरवों की तरफ थे और कोई पांडवों की तरफ थे। तो राजा बर्बरीक ने भी डिसाइड किया कि मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा। तो जब ये आगे हिस्सा लेने गए तो राजा बर्बरीक की एक कसम थी, एक सौगंध थी कि मैं उस साइड का साथ दूंगा जो हार रही होगी।
अब कृष्ण को जब ये मालूम चला तो उन्होंने कहा अगर ये हिस्सा बन गए तो ये तो कभी युद्ध खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे ये पांडव की साइड आ जाएंगे, और जब कौरव हारने लगेंगे ये कौरव की साइड चले जाएंगे। इट मीन्स दिस वॉर विल बिकम एटर्नल। सो क्योंकि वो कृष्ण के शिष्य थे, कृष्ण को अपना गुरु मानते थे, गुरु दक्षिणा में कृष्ण ने बोला कि आई वॉन्ट योर हेड। तो उन्होंने बोला मेरी एक इच्छा है कि मैं महाभारत को देखना चाहता हूं। तो फिर ऐसा बताया जाता है कि एक शिखा पर उनका सिर रहा और वो जीवित रहा, कब तक? जब तक ये युद्ध चला। और पूरे युद्ध को अगर किसी ने बहुत अच्छे से देखा तो वो राजा बर्बरीक थे। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन को ये गलत फहमी बोल सकते हो, खुश फहमी बोल सकते हो, जो नॉर्मली हर किसी को होता है, उन्हें लगा कि मैं बहुत बड़ा वॉरियर हूं और इस युद्ध को मैंने जीता है। और कृष्ण को यह आभास था कि थोड़ा थोड़ा अर्जुन को यह फीलिंग हो रही है। कैसे आभास हुआ? क्योंकि जब युद्ध खत्म हो गया तो जब रथ से उतरना था तो नॉर्मली अगर आपका ड्राइवर हो गाड़ी में और मालिक भी बैठा हो पीछे, तो पहले कौन उतरता है? ड्राइवर उतरता है और फिर वो मालिक के लिए दरवाजा खोलता है। तो जो चैरियट था, रथ था, उसको चला कौन रहे थे? श्री कृष्ण। यानी कि श्री कृष्ण क्या हो गए? सारथी हो गए। और अर्जुन वहां बैठे तो एक तरह से अर्जुन हेड हो गए। तो एक्सपेक्टेड तो ये किया जाता है कि पहले सारथी उतरेगा और उसके बाद वो अर्जुन को उतारेंगे, लेकिन जब रथ रोका गया तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम रथ से उतरो। तो ये थोड़ा उसको अटपटा लगा कि यार ये क्या किया इन्होंने, क्योंकि सारथी का धर्म है कि वो पहले उतरे। तो अर्जुन कुछ बोल नहीं सकते थे, उनको स्नेह था कृष्ण के साथ और उनको अपना मेंटर भी मानते थे। तो वो रथ से उतरे, और जब वो रथ से उतरे और उसका जब कृष्ण रथ से उतरे तो स्टोरी बताती है कि वो रथ जलकर ध्वस्त हो गया। तो जब उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ तो कृष्ण ने बोला कि रथ तो बहुत पहले खत्म हो चुका था, ये सिर्फ इसलिए टिका था क्योंकि उस पर मैं था और हनुमान जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? लेकिन फिर भी अर्जुन को ये वहम था। तो जब युद्ध समाप्त हुआ और ये सारे लोग राजा बर्बरीक के पास गए तो अर्जुन ने ये जानना चाहा कि इस युद्ध को मेन हीरो कौन है। तो अर्जुन ने ये सवाल पूछा कि राजा बर्बरीक, तुमने तो ये सारा युद्ध देखा है, बताओ इस युद्ध को कौन लड़ रहा था और कौन था इसको जो आगे तक लेके गया। अर्जुन को उम्मीद थी कि राजा बर्बरीक बोलेंगे कि तुम्हारे जैसा बाहुबली है, ये तुम्हारी वजह से हुआ। तो राजा बर्बरीक मुस्कुराए और इन्होंने बोला कि युद्ध तो एक ही आदमी लड़ रहा था और उसका नाम क्या था? श्री कृष्ण। क्या नाम था? श्री कृष्ण। सो प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, जिस तरफ माइंड सेट होता है उस तरफ ही कामयाबी मिलती है। तुमको ना तो तुम्हारे टूल्स जिताने वाले हैं, तुम्हारा माइंडसेट तुमको जिताएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि तुम जो अपना माइंडसेट डेवलप कर रहे हो टुवर्ड्स लाइफ, वो ग्रोथ ओरिएंटेड है या नहीं? तुम जो अपना माइंडसेट डेवलप कर रहे हो वो सक्सेस ओरिएंटेड है या नहीं? तुम जो माइंडसेट डेवलप कर रहे हो उसमें इक्वानिमिटी है या नहीं? तुम जो माइंडसेट डेवलप कर रहे हो अपना उसमें पॉजिटिविटी है या नहीं? तुम जो अपना माइंडसेट डेवलप कर रहे हो वो कितना एम्पावरिंग है? क्योंकि आपकी लाइफ आपने क्या एक्यूमुलेट किया है उससे डिसाइडेड नहीं होगी। क्योंकि अगर एक्यूमुलेशन से डिसाइडेड होती, सो यू मस्ट नो कि महाभारत के युद्ध में 18 सेनाओं ने युद्ध किया, जिसमें 11 सेनाएं कौरवों की तरफ थी और 7 सेनाएं किसकी तरफ थी? पांडवों की तरफ। अगर अब कौरवों की सेना को देखते हैं तो बहुत विशाल सेना थी। भीष्म पितामह वहां पर खड़े हैं, द्रोणाचार्य वहां खड़े हैं, कृपाचार्य वहां पर खड़े हैं, कर्ण खड़ा है वहां पे, लेकिन फिर भी ये लोग हार गए क्योंकि माइंडसेट कमजोर था। जब हम अर्जुन की बात करते हैं तो वहां का माइंडसेट स्ट्रांग था। उस माइंडसेट में दो मत नहीं थे, उनको ये क्लैरिटी थी दैट वी आर फाइटिंग फॉर धर्मा। लेकिन जो लोग दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे वो दुविधा में थे, उनको मालूम था कि हम अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो जब भी माइंड में कन्फ्लिक्ट होगा, जब भी माइंड में ड्युअलिटी आएगी, वो आपको परफॉर्म करने नहीं देगा, और परफॉर्म करोगे भी तो तुमको कामयाबी नहीं मिलेगी। सो द मोमेंट यू डिसाइड टू एक्वायर समथिंग, द मोमेंट यू डिसाइड टू अचीव समथिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू चेक इन योर माइंड इज, आर यू इन द बैलेंस, हैविंग सिंगल फोकस, और यू आर इनटू ड्युअलिटी? हाँ ना के बीच में नहीं, हाँ ही होनी चाहिए या फिर कंप्लीट ना होनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और सोचता है कि यार मैं संन्यास ले लूं, तो अब आगे बढ़ता है, रास्ते में खड़ा है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, संन्यास लूं या घर वापस चला जाऊं, पीछे घर की भी याद आ रही है और आगे वो मिलना भी चाहता है। तभी वहां पर एक काम वाली झाड़ू लगाते आती है, देखती है आदमी बीच में खड़ा है और काम वाली बोलती है, बाबा या तो उस तरफ हो जा या इस तरफ हो जा, बीच में खड़ा मत रह। बाबा या तो
उस तरफ हो जा या इस तरफ हो जा, बीच में खड़ा मत रह। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अस। जब फैसला लेने का वक्त आता है हम बीच में खड़े होते हैं, ना तो हम एक साइड हो रहे होते हैं ना दूसरी साइड हो रहे हैं। आप तय कीजिए, आप डिसीजन लीजिए, और जब आप डिसीजन लेते हैं और आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, तो एक तीसरी शक्ति आती है बीच में जो आपकी मदद करती है, जो पांडवों के लिए आई। पांडव किसके साथ थे? धर्म के साथ थे। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें उन्होंने किसी का राइट छीना हो, लेकिन दुर्योधन के पास सारी पावर थी, सारी फौज थी, लेकिन उसने दूसरे के अधिकार पर अपना अधिकार जमाया, तो वो हारा और जीते कौन? पांडव। आर वी मीटिंग गाइस? यस और नो? सो इट इज अ वॉर बिटवीन माइंडसेट एंड टूल्स। जीतता कौन है? माइंडसेट। हारते कौन है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब हम अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, तो हमको किस पे काम करना है? माइंडसेट। बीच में एक डिसीजन लेना, या तो इधर या उधर, और जो डिसीजन ले लिया फिर उस पर आप टिके रहिए। और वो डिसीजन अगर आपका सही है, इन अलाइनमेंट विद द लॉ ऑफ धर्मा, सो थर्ड एनर्जी विल कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट यू। और उसका नाम क्या है? उसे भगवान बोलो, उसको अल्लाह बोलो, उसको नानक बोलो, उसको क्राइस्ट बोलो, कोई भी बोलो, जिस पर तुम्हारा फेथ है वो तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो जाती है। और वो पावर जहां खड़ी होती है वो व्यक्ति फिर हारता नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद 18 पर्व। जो सबसे पहला पर्व है उसको आदि पर्व बोला जाता है। बोलिए एक बार, कौन सा पर्व? आदि पर्व। ये वो बुक है महाभारत की जो इंट्रोडक्शन देती है कौरवों के पूरे परिवार का। बच्चों का जन्म होता है इसमें, राजकुमारों का, जिसमें कौरव हैं, पांडव हैं, और उनकी अपब्रिंगिंग होती है, वो बड़े होते हैं। ये पहली बुक है जिसको हम बोलते हैं आदि पर्व। और फिर अगली बुक आती है जिसमें दो पर्व आते हैं, एक को बोला जाता है वान पर्व और एक को बोला जाता है विराट पर्व। कौन सा? दूसरा। और तीसरा कौन सा? ये पर्व वो है जहां पर पांडवों को जंगल में जाना पड़ता है, क्योंकि वो जुए में हार जाते हैं। तो जब वो जंगल में जाते हैं तो उनको 13 इयर्स का एग्जाइल मिलता है, जिसमें कंडीशन होती है कि 12 इयर्स वो जंगल में रहेंगे। तो वान पर्व कौन सा पीरियड है? जिस पीरियड में पांडव कहां पर रहे? जंगल में रहे। इसमें वो सारी स्टोरी मिलेगी तुमको जिस समय जंगलों में पांडव रहे और उन्होंने क्या क्या किया। और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है विराट पर्व। ये वो पर्व है जिसमें उनको भेष बदल कर रहना था, उनकी पहचान गुप्त रहनी चाहिए थी, क्योंकि अगर पहचान पकड़ी जाती तो दोबारा से उनको फिर से 13 साल का वनवास जाना था। तो ये राजा विराट के पास रहे अलग अलग भेष में। तो पहला पर्व कौन सा है? आदि पर्व। उसके अंदर क्या है? सबकी, कौरव पांडव जो भी थे, इस पूरे खानदान का जन्म कैसे हुआ, इनका पालन पोषण कैसे हुआ, जो पूरी की पूरी स्टोरी चलती है इनकी बड़े होने तक की, तब तक की कहानी है। और फिर उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है? वान पर्व। इसमें जो जुआ खेला उन्होंने, जुए में वो हार गए, फिर उनको जंगल में जाकर रहना पड़ा, ये सारा है। फिर उसके बाद कौन सी आती है? विराट पर्व। इसमें कौन सा हिस्सा आता है आपकी महाभारत का? जिसमें वो भेष बदल कर रहते हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है उद्योग पर्व। ये पर्व कौन सा पर्व है? द मोमेंट पांडवास कम बैक एंड दे से दैट नाउ गिव अस आवर राइट, सो दुर्योधन डिनाइज एंड ही सेज आई विल नॉट गिव. So everybody tries to avoid the battle, and finally Duryodhan is given offered by Pandavas that okay, give us 5 villages. You don't want to give us a whole empire, you give us only 5 villages. But the arrogant, greedy Duryodhana says कि मैं तुमको सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा. So ultimately अब आपके लिए वॉर क्या हो गई है? मैंडेटरी हो गई है. इतिहास बताता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप युद्ध लड़ें, आपकी कोई इच्छा हो युद्ध लड़ने की, बट बहुत बार बैटल मैंडेटरी हो जाती है, आप पर थोप दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, your country is a beautiful country which does not believe in the philosophy of expansion and it does not believe in the ideology of interference. भारत की जो नीति है ये ना तो अपने विस्तारवादी नीति पर चलता है और ना ही इसकी ऐसी विचारधारा है कि दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करे. तो अगर हम भारत को उठाते हैं और देखते हैं तो भारत के 3 युद्ध हुए. उन तीनों युद्ध में 2 युद्ध जो हुए वो पाकिस्तान की तरफ से अटैक था और एक युद्ध हुआ जो किसकी तरफ से अटैक था? चाइना. भारत किसी भी युद्ध में एग्रेसर नहीं था, एग्रेसर नहीं था. इट मींस भारत ये करता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी देश की जो चेतना होती है वो उसके कल्चर से निकल कर आती है, उसके जो पीछे हिस्ट्री होती है उससे निकल कर आती है. और भारत का हिस्ट्री जो है, भारत की जो चेतना है वो एकजुट रहने की चेतना है, मिलकर चलने की चेतना और अपने आप में संतुष्ट रहने की चेतना. इसलिए इंडियंस बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और शहरों से ज़्यादा अगर कभी आप गाँव में जाकर देखिए, सो पीपल आर हाईली सेटिस्फाइड. उनका पूरा दिन खाट पर बैठे बैठे भी बीत जाता है. यस और नो?
एंड यू विल बी अपसेट कि आइटम को कुछ जल्दी क्यों नहीं है। एक शहरी आदमी जब गांव में जाता है तो बड़ा बेचैन होता है, क्योंकि वो कहां से आ रहा है, स्पीड से, गति से आ रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। वहां देखता आदमी आराम से बैठा है, उसको कोई जल्दी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये हमारी चेतना है। वी आर लाइक दिस ओनली, वी आर नॉट वायलेंट, वी आर नॉट वायलेंट। हिंसा नहीं है हमारे भीतर। तो उद्योग पर्व वो पर्व होता है जब डिनाई हो जाता है और पांडवों को युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है, लोग बट जाते हैं, अलग अलग सेनाएं होती हैं, कौरवों की अलग और पांडवों की अलग। जितने भी राजा थे, कोई कौरव की साइड जाते हैं और कोई पांडवों की तरफ चले जाते हैं। अब ये बैटल कौन जीतेगा ये बहुत पहले डिसाइडेड हो गया था। When was it decided? The story goes like this, that when all these Kauravas and Pandavas were seeking support from different people, so ultimately they decided to seek support from Krishna also, that you come and support us. So Duryodhana went to the room of Krishna. At that time Krishna was sleeping. So Duryodhana said, let him sleep. The moment he'll wake up, I'll ask him to support me. So he just sat by the side of Krishna's head, waited for Krishna to wake up. Meanwhile, Arjun also came. इसी बीच अर्जुन भी वहां पर पहुंचे। अर्जुन ने भी देखा कृष्ण सो रहे हैं, तो अर्जुन भी आकर कृष्ण के पैरों के पास बैठ गए और ये इंतजार करते रहे कि जब उठेंगे तब मैं इनसे सपोर्ट मांगूंगा। एंड एट राइट टाइम कृष्णा woke up. So the moment Krishna woke up, he looked Arjuna first and he said, Arjuna, tell me, how come you are here? So this side Duryodhana was sitting. He said, Krishna, I have also come. He said, yes, I know, I'll help you also, but for me Arjuna is first, because after waking up I saw Arjuna first. जी, आंख खुलने के बाद मैंने पहले किसको देखा? अर्जुन को। तो पहला हक अर्जुन का है, बाद में तुम्हारा। तो अर्जुन said कि we have come to seek your support because battle is going to start. So Krishna said, see, you both have come, so I'll not disappoint any of you. What I'll do is I'll divide myself in two. मैं अपने आप को दो हिस्सों में बांटता हूं। एक तरफ मेरी पूरी सेना है और दूसरी तरफ मैं अकेला हूं। तुम दोनों में से या तो मेरी सेना ले लो या मुझे ले लो। तो अर्जुन, पहला अधिकार तुम्हें है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। द मोमेंट कृष्णा सेड, अर्जुन पहला अधिकार तुम्हारा है, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। दुर्योधन बेचैन हो गया, उसे लगा ये तो फौज ले लेगा और मेरा क्या होगा, कृष्ण का मैं करूंगा क्या। देखिए इस बात को समझो कि जब कृष्ण थे इनकारनेशन ऑफ गॉड, तब भी आइटम को समझ नहीं आया कि भगवान है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो ऐसा नहीं है कि मतलब उस समय बेवकूफों की कमी थी, जैसे ऐसा कहा जाता है पहले के लोग ज्यादा अच्छे थे अब के खराब है, पहले अच्छाई अच्छी थी अब बुराई ज्यादा। ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छाई पहले भी थी, बुराई पहले भी थी, अच्छाई आज भी है और बुराई आज भी है। थोड़ा सा जो ह्यूमन का स्टेटस स्टैंडर्ड है वो थोड़ा गिरना शुरू हो जाता है, ये अलग स्टोरी है, बट अच्छाई और बुराई हमेशा रहती है। तो अर्जुन ने बोला कि कृष्ण, आई वॉन्ट यू। सो कृष्ण सेड, बी केयरफुल, बिकॉज जिसको भी मुझे लेना है वो इस चीज को भी समझ ले कि आई एम गोइंग टू बी विद यू बट आई विल नॉट फाइट। जो कोई मेरा चुनाव करेगा मैं उसके साथ रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। So Arjun, be careful. He said, it's okay, Madhusudan, you are by my side, it's enough for me. Duryodhan was very happy. He said, पागल है। So he said, ठीक है कृष्ण, तुम अपनी मुझे फौज दे दो। And very happily he went back to the court of his kingdom. And he happily announced कि ऐसे ऐसे मैं वहां पर गया और मूर्ख अर्जुन ने कृष्ण को ले लिया और मैंने कृष्ण की सारी फौज ले ली। तो स्टोरी बताती है कि उस समय भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गए थे कि हम युद्ध को हार चुके हैं, क्योंकि जिस साइड गॉड खड़ा होगा उसको आप हरा नहीं सकते। तो ये पूरी तैयारी कौन से पर्व में होती है? उद्योग पर्व में। उसके बाद आता है आपका भीष्म पर्व। ये भीष्म पर्व वो है जहां पर पहली बैटल लड़ी जाती है एज भीष्म एज अ कमांडर। ये पहला हिस्सा है बैटल का और यहीं से गीता आरंभ होती है। यहीं से गीता आरंभ होती है। भीष्म पर्व के अंदर ही गीता कही गई है, क्योंकि पहला हिस्सा बैटल का जब स्टार्ट होता है, अर्जुन युद्ध के मैदान में आते हैं, कृष्ण से बोलते हैं कि मुझे मध्य में लेकर चलिए, आई वांट टू सी द पीपल हु वांट टू फाइट विद मी। लेकिन जैसे ही अर्जुन मध्य में पहुंचते हैं उनको बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होता है जब अपने नियर एंड डियर वंस को देखते हैं, क्योंकि अर्जुन बाय नेचर एक पायस सोल है। अर्जुन विनाश नहीं चाहते हैं। अर्जुन क्या चाहते हैं?
शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब चीजें ठीक हो। तो इस तरह का व्यक्ति जब भी ऐसी परिस्थिति में आएगा उसके साथ क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। तो अर्जुन के साथ भी क्या हुआ, विड्रॉल सिम्टम, यानी कि जिसके के लिए वो आ रहे हैं उसी से उन्होंने मना करना शुरू कर दिया। तो जब ये बेचैनी अर्जुन को होती है और इस बेचैनी को वो कन्वे करते हैं किसको, श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण उनको गीता का ज्ञान देते हैं और उनको बताते हैं कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है, और तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ये सारा जब उनको समझ आता है, जब वो जीवन को समझते हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं, तब अर्जुन दोबारा खड़े होते हैं और इस युद्ध को लड़ते हैं और इसको जी जाते हैं। तो पूरी गीता जो है वो भीष्म पर्व में कही गई। इसके बाद जो आता है वो आपका आता है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व वो है जब बैटल लड़ी गई एज ए द्रोण एज अ कमांडर। फिर उसके बाद आता है कर्ण पर्व जिसमें बैटल लड़ा गया कर्ण एज अ कमांडर। और फिर आता है शल्य पर्व, ये युद्ध का आखिरी हिस्सा है। आखिरी कमांडर जो था महाभारत में कौरवों की तरफ से, वो कौन थे, राजा शल्य पर्व। और उसके बाद फिर आता है सौप्तिका पर्व। ये भयंकर पर्व रहा महाभारत में, जिसमें अश्वत्थामा सोए हुए पुत्रों को मार देते हैं, द्रौपदी के पुत्रों को, इन सबको विनाश करते हैं सौप्तिका पर्व में। जिसके बाद अश्वत्थामा को श्राप दिया जाता है कि तुम सारी उम्र ऐसे ही भटकते रहोगे, और उनकी मणि भी निकाल ली जाती है। ये वो वाला हिस्सा आपका आता है महाभारत का। और सौप्तिका पर्व के बाद आता है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व वो हिस्सा जब बैटल खत्म हो चुकी है और अब स्त्रियों का विलाप है, क्योंकि इस वॉर में मैक्सिमम लोग मारे गए थे। सो पीछे जो बचे थे वो विडोज थी और आपके ऑर्फन से। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ह्यूमैनिटी में जब जब युद्ध हुआ है, युद्ध से कभी भी किसी का भला नहीं होता है। बट इन द बिगिनिंग आई सेड कि कई बार युद्ध मैंडेटरी हो जाता है, पर जब कभी भी ये होता है तो पीछे जो छूटता है वो क्या होती है, पेन होती है। तो इस पूरे हिस्से में जो स्त्री पर्व है, स्त्रियों का विलाप है, जो भी वहां पे विडोज वगैरह हुई। और उसका फिर आता है शांति पर्व। शांति पर्व वो हिस्सा है महाभारत का जिसमें युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता है और वो दोबारा से अपने राज्य को चलाना शुरू करते हैं। और फिर उसका शुरू होता है अनुशासन पर्व। अब इसमें आप देखिए कि भीष्म पितामह तीरों पर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह जीवित रहे थे क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उन्होंने बोला था कि मैं जब तक ये बैटल खत्म नहीं हो जाती मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो जब वो बैटल खत्म हो गई, युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, तो ये सब युधिष्ठिर अपने लोगों सहित भीष्म पितामह से मिल लेंगे। तो यहाँ पर भीष्म पितामह ने उनको राज्य चलाने का ज्ञान दिया, शिक्षा दी कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। तो इसलिए इसको अनुशासन पर्व बोला जाता है। इसमें भीष्म पितामह सब कुछ बताते हैं और इसके बाद अपनी बॉडी को डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह छोड़ते हैं अपने शरीर को। और फिर शुरू होता है अश्वमेधिका पर्व। अश्वमेध का मतलब होता है, पहले जब राजा अपने राज्यों के विस्तार करते थे तो एक राजा अपने एक घोड़े को छोड़ देता था, और जिस जिस राज्य से वो घोड़ा गुजरता था, अगर वहां का राजा उसको स्वीकार कर लेता तो इसका मतलब अब वो राजा इसी एम्पायर के अंडर काम करेगा, बीइंग अ किंग रहेगा। लेकिन बड़ा किंग किसको मानेगा, उस पर्टिकुलर, और जिसको उसको ऑब्जेक्ट करना उसको फिर वॉर करना पड़ता था। अगर जीत गया तो वो हो गया, अदरवाइज वो मारा जाता था। और उसके बाद फिर आपका अगला आता है आश्रम वासिका पर्व। ये वो पर्व है जब धृतराष्ट्र को कुंती और जो गांधारी थे, इनको दिख गया था कि अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, परेशान थे, बच्चे खत्म हो चुके थे, गांधारी के 100 के 100 पुत्र मारे गए थे। तो ये सब वनवास में चले जाते हैं, जंगल में जाकर आश्रम में रहते हैं और अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ जो स्पिरिचुअल जर्नी में बिताते हैं। और फिर उसके बाद आता है मौसला पर्व। ये वो पर्व है जिसमें कृष्ण अपनी बॉडी को डिस्कार्ड कर देते हैं। पूरी की पूरी द्वारका जो समुंदर में डूब जाती है, बलराम समुंदर में डूब जाते हैं। यानी कि जितनी भी ये एनर्जीज आई होती हैं, यहाँ पे फोर्सेस आई होती हैं, वो अब धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू करती हैं और इसमें यादव वंश खत्म होता है। मौसला पर्व के अंदर जो भी आपका यदुवंश रहा वो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद फिर आता है महाप्रस्थान पर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसमें अब पांचों पांडव देखते हैं कि अब हमारा शरीर बूढ़ा हो चुका है, राज्य वो अपने बच्चों को सौंपते हैं और खुद निकल जाते हैं अपने वनवास पर जंगल के अंदर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉन टू बद्रीनाथ? आप में से कितने लोगों ने बद्रीनाथ को देखा है? इट्स वेरी स्ट्रेंज। You young people have never gone to Badrinath, Kedarnath. Okay, 2 people have gone to Kedarnath. Yamunotri, Gangotri. अच्छा, let me tell you, these are not कि भी religious जगहें, ये adventure की जगहें होती हैं। Artificial wall पे चढ़कर adventure नहीं होता है। Adventure होता है जब तुम nature में घुसते हो। So let me tell you, चारों जगहें कौन सी हैं और तुम लोगों को जाना चाहिए as you are young. ओके,
यमुनोत्री वो जगह है जहां से यमुना का उत्थान होता है, यमुना शुरू होती है। और यमुनोत्री से कुछ किलोमीटर आगे अगर आप ट्रैक करें तो वहां पर एक ग्लेशियर है पूरा, जिसे बोला जाता है सप्तऋषि कुंड। कौन सा कुंड? यहां पर 7 ऋषियों ने तपस्या की थी और यहीं से यमुना शुरू होती है। आई हैव बीन टू दिस प्लेस। दूसरी आती है यमुनोत्री। यमुनोत्री वो जगह है जहां पर भगीरथी ने गंगा को बुलाया था धरती पर, और यहां पर गंगा आई थी। यहां से गंगा की शुरुआत होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ये ग्लेशियर मेल्ट होता चला गया और 22 किलोमीटर पीछे जा चुका है। अब उस जगह का नाम जहां से गंगा शुरू होती है उसे गोमुख बोला जाता है। ये यमुनोत्री से 22 किलोमीटर का ट्रैक है। जब आप 22 किलोमीटर का ट्रैक करके जाते हैं तो आपको वो जगह दिखाई देती है जहां से गंगा शुरू हुई है। ये कौन सी जगह है? गोमुख। और वैसे नॉर्मली लोग यमुनोत्री गंगोत्री तक जाते हैं क्योंकि बसेस हैं वहां तक, गाड़ियां जाती हैं आपकी अपनी पर्सनल, आगे आपको पैदल जाना होता है। ओके, केदारनाथ यू ऑलरेडी नो, इट इज अ प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा, वहां पर शिवलिंग है लॉर्ड शिवा का। एंड बद्रीनाथ इज अ प्लेस जहां ये पूरा ट्रैक है जो आखिरी जीवन पांडवों ने अपना बिताया। बद्रीनाथ से जब आप 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक गांव आता है जिसका नाम है माना गांव। उस माना गांव के पास सरस्वती नदी का उत्थान होता है। एंड इफ यू एवर गो ओवर देयर यू विल बी सरप्राइज कि आपको साफ दिखाई दे रही है सरस्वती नदी आ रही है और एकदम से एक चट्टान में घुसती है और शांत हो जाती है। उसका उसका पानी नहीं दिखाई देता। द प्लेस फ्रॉम वेयर सरस्वती इज कमिंग, बहुत आवाज हो रही है, बहुत नॉइस है, लेकिन जैसे वो उस खड्डे में जाती है उसका मालूम नहीं है कि कहाँ पर है। तो ऐसा बोला जाता है कि सरस्वती लुप्त हो गई क्योंकि उसको श्राप दिया गया, क्योंकि जब गणपति जी महाभारत को लिख रहे थे तो सरस्वती शोर मचा रही थी। और जब शोर मचा रही थी तो उन्होंने बोला कि भाई तू डिस्टर्ब कर रही है, मुझे लिखने ले, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी तो उन्होंने उसको पाताल में डाल दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? कहानियां हैं जो इसके पीछे चली, आप इसे सुनिए। उसी सरस्वती नदी के ऊपर एक बहुत विशाल पहाड़ की शिला रखी गई है जिसे बोला जाता है भीम पुल। ये वो जगह थी जहां पर द्रौपदी ने अपनी बॉडी को छोड़ा, यानी कि यहां पर किसका डेथ हुआ? द्रौपदी का। फिर जब आप आगे मूव करेंगे इसी ट्रैक पर, ये 35 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 35 किलोमीटर के ट्रैक पे जब आप मूव करेंगे तो ये जो भीम पुल है इसके बाद आती है वसुधारा। कौन सी धारा? वसुधारा। इसमें आप देखेंगे एक बहुत टॉप की धारा ऊपर से गिरती है और वो पानी इतने झरना है इस तरह का कि उसका जल नीचे नहीं गिरता है, बीच में ही हवा से उड़ता रहता है। ओके, वसुधारा पे जो नकुल थे उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था। फिर इससे आगे जब आप आगे मूव करते हैं तो आगे एक जगह आती है लक्ष्मी वन। लक्ष्मी वन के अंदर ये जो भोजपत्र होता है इसके पेड़ हैं, जो बोला जाता है जिसमें पहले उपनिषद और ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी, ये पेड़ वहाँ पर मिलेंगे। अगर आप इसकी खाल को उतार के ले आओ तो घर में आप उसमें से अलग अलग लेयर्स निकालोगे तो आपके पास खूब सारा भोजपत्र हो जाएगा। ये कौन सी जगह है? लक्ष्मी वन। यहाँ पे किसने अपना बॉडी छोड़ा? सहदेव ने। और इससे आगे जब आप मूव करते हैं तो चक्र तीर्थ नाम की जगह पर आती है, यहाँ पर अर्जुन ने अपना शरीर छोड़ा था। इससे आगे जब आप चलते हैं तो ट्रैक और टफ हो जाता है। इस जगह का नाम है सतोपंथ, यानी कि सत्या का मार्ग। यहाँ पर भीम ने अपनी बॉडी को छोड़ा था। और इससे आगे जब आप 1 किलोमीटर और मूव करते हो तो अगली जगह आती है जिसका नाम है स्वर्गारोहिणी। ये वो जगह है जहाँ से एज पर स्टोरी जो युधिष्ठिर थे वो साक्षात स्वर्ग में गए थे, इसलिए इस जगह का नाम क्या है? स्वर्गारोहिणी। इफ यू एवर हैव एनी काइंड ऑफ इंक्लिनेशन टूवर्ड्स तो आप इस यात्रा को कीजिए। गो टू बद्रीनाथ, वहाँ आपको प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। देन यू नीड टू हैव सम पीपल विद यू जो आपके लिए टेंट और इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलें। एंड द बेस्ट टाइम टू गो ओवर देयर इज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, द बिगिनिंग ऑफ सेप्टेम्बर। बाकी पीरियड में रिस्की होता है बिकॉज एनी टाइम देयर कैन बी स्नोफॉल, एनी टाइम देयर कैन बी रेन। रास्ता बिल्कुल अलकनंदा नदी के साथ चलता है, बहुत पतला है, गिरने की पूरी संभावना है और अगर गिर गए तो वहीं संस्कार हो जाता है। Okay, and if you go over there you will meet sages also, those who come and do their spiritual practices. So we went to all these places. ये सारी जगहें जो मैं आपको बोल रहा हूँ fortunately ये हम हो आए हैं यहाँ पर and 2-3 times. So these are very powerful places because Himalaya is a center of energy. Himalaya is a सेंटर ऑफ एनर्जी। पहाड़ हमेशा त्रिकोण शेप में होते हैं और जिनको साइंस आती है उनको मालूम होगा कि कोई भी चीज़ जब त्रिकोण शेप में होती है तो वो एनर्जी को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करती है। तो हिमालय इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी माउंटेन, इट्स अ माउंटेन विच हैज़ गॉट ह्यूज एनर्जी एंड यू डोंट नो दैट, बट फॉरेनर्स को देखिएगा वहाँ कैसे आते हैं। तुम्हारा जीवन 2 बोतल वोड का काम मेरा रोज का एंड हुक्का बार ख़त्म कर रहा है, लेकिन वो इससे तंग आ चुके हैं तो वो अब हमारी संस्कृति में आ रहे हैं। तो तुम्हारे लिए तो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं,
देखिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, टेल मी, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे जीवन में क्या है? तुम खुद, यस और नो। और तुम खुद का मतलब कि यू गॉट टू बी वाइस, यू गॉट टू बी लविंग योरसेल्फ, यू गॉट टू बी चेयरफुल, यू गॉट टू बी हैप्पी। ये सारी चीजें आपके भीतर होनी चाहिए, और इसके लिए जो जो आप लोग कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। Are we meeting, guys? Yes or no? So I would recommend that once in your lifetime, before you get married, आप इन जगहों को देखिए जाकर। They are fun, they are worth going. You will be surprised to see the nature at its peak. जब आप देखेंगे ना गोमुख को, जहाँ से गंगा निकली है, you will be, I mean, थोड़ी देर के लिए तो आपका मन करेगा हम यहीं रुकें। हम इससे आगे भी गए हैं। I am not recommending you that because they are risky. तपोवन, इसके गोमुख के ऊपर एक पहाड़ है जिसको तपोवन बोला जाता है। इफ यू एवर गो देयर, वहां पे आपको सेजेस मिलेंगे जो डीप योगी होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, एंड यू सिट विद देम इन देयर ऑरा, इट्स एनफ फॉर यू। आप उनके साथ कुछ देर बैठ लीजिए, बहुत है आपके लिए। यू डोंट नो दैट हाउ मच प्यूरिफिकेशन कैन हैपन इनसाइड यू। व्हेन वी वेंट टू स्वर्गारोहणी, वी स्टेड इन द कुटिया ऑफ वन महाराज एंड वी वर हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि उन्होंने हमको नाश्ता बना के कराया। Still it is in our memory. Still it is in our memory. Are you understanding? फिर आखिरी पर्व आता है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व वो है जहां पे पांडव अपने सोर्स में पहुंच जाते हैं, यानी कि स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। Are we meeting, guys? तो हमको समझ आ गया कि हमारे 18 पर्व कौन से हैं। ओके, टोटल महाभारत कितने पर्व में डिवाइडेड है? 18 पर्व। और इन्हीं पर्व के बीच में एक जगह गीता कही गई है, कौन से हिस्से में? भीष्म पर्व में, right? This we understood. We also understood that Gita does not teach us to fight, Gita teaches us to live.